Hello. So what is angle of inclination? Theta is the angle of inclination. If there is friction mu between the surface and the block, coefficient of friction is mu between the surface and the block. If you keep on increasing the angle theta, at what angle will the block start slipping down the inclined plane? Tan inverse of mu. At an angle tan inverse of mu. And that angle was equal to angle of friction. That angle was equal to angle of friction. That angle was actually equal to angle of friction. But if you want to exactly define that angle, the angle at which the block starts slipping, the angle of inclination at which the block starts slipping down the inclined plane, अगर ऐसा बोले angle का definition ऐसा दिए तो उस angle को actually बोलते हैं angle of repose. क्या बोलते हैं? Angle of repose बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? Angle of repose. And angle of repose will be equal to angle of friction. Okay? Angle of repose will be equal to angle of friction. अब ये question ये आता कि angle of friction क्या होता फिर? ठीक है, numerically both are equal. You can use the value of angle of friction as angle of repose, जो अभी तक कर रहे थे. But angle of repose का definition है the minimum angle at which the block starts slipping down the inclined plane. Then what is the definition of angle of friction? Angle of friction is the angle between contact force and normal reaction. Angle of friction is the angle between contact force and normal reaction. मैं एक example देता हूँ. Suppose एक horizontal surface है, okay? इस पे एक block है. इस पे suppose एक block है. Now, normal reaction, the direction of normal reaction is upwards. The direction of normal reaction is upwards. And suppose the friction is in this direction, small f ये direction में है, ठीक है? तो contact force का direction क्या आता? ये आता. ये दोनों का resultant आता. ये contact force है, ठीक है? इसको FC लिखेंगे. क्या लिखेंगे? FC. तीनों भी वेक्टर्स है इसलिए ऊपर बार लगा देंगे. तो ये है आपका F. ठीक है? तो tell me where is the angle of friction here? F और N के बीच में ये जो एंगल है ना, that is angle of friction. समझ में आई बात? So let me just draw it here like this. ये angle of friction है. Okay? Okay. This is angle of friction. Now let us check whether angle of friction and angle of repose are equal. Angle of friction and angle of repose are equal. Let us check. तो ये है आपका angle of friction theta. ठीक है?
ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बीटा ले लो, बीटा. ओके, अल्फा ले लो, इट डजंट मैटर. ये क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स. समझ में आई बात? सो लेट अस सी. Now when the friction will become equal to limiting friction, वो angle of repose हो जाता है. When friction is equal to, मैं बताता हूँ, ठहरो मैं बताता हूँ, एक मिनट. एक इंक्लाइन प्लेन ले लेंगे, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और you take this block, ओके, लेट इट बी. तो यहाँ पे mg का डायरेक्शन कहाँ पे है? इधर. ये mg है, ठीक है, ये mg का डायरेक्शन है. एंड नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है? ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है. और फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है. ओके, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है. क्लियर? समझ में आया? नाउ व्हेन फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू mg sin थीटा, इट स्टार्ट स्लिपिंग. डू यू एग्री? ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू जब ये एंगल अल्फा हो जाता, जब जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग स्टार्ट करता, इसका मतलब जस्ट जो है ना mg से थोड़ा बढ़ जाता फोर्स. देखो, जब तक अल्फा कम है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन ऐसा एडजस्ट हो जा रहा था कि mg जो है ना टोटली कैंसिल हो जा रहा था. mg क्या हो रहा था? टोटली कैंसिल हो जा रहा. ठीक है, क्लियर? अब जब अल्फा हो जाता क्या होता? हाँ, ठीक है. तो नेट फोर्स कहाँ आता? देखो यहाँ आता. ये है कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? ये है, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरे कलर में लिखेंगे. ओके, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हाई डू यू थिंक दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स? It is resultant of Fn and good. And one more thing is mg को बैलेंस करते n एंड f मिलके, इसीलिए वो जस्ट जो है ना मूव होना स्टार्ट कर रहा. ठीक है. अब एक चीज बोलो मेरे को, यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है? ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये है, दिखाई दे रहा है आपको? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. क्लियर? ओके. And you can clearly see that this angle and alpha are equal. How do you know? क्योंकि ये mg cos थीटा है, दिखाई दे रहा? ये क्या है? mg cos थीटा है. और ये क्या है? mg sin थीटा है. क्योंकि because this angle was alpha, this angle was अल्फा. ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होता. समझ गए? तो सी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. हाँ, ठीक है. एंड व्हेन दैट एंगल विल बिकम सच दैट, देखो जैसा जैसा mg sin थीटा बढ़ते जाता, mg sin थीटा कब बढ़ता? जब थीटा बढ़ रहा. mg sin थीटा कब बढ़ता? जब थीटा इंक्रीज हो रहा. देखो, जैसा जैसा पहले थीटा जीरो था तो mg sin थीटा भी जीरो था. थीटा इंक्रीज हो रहा तो mg sin थीटा इंक्रीज हो रहा. ठीक है. तो अगर mg sin थीटा इंक्रीज हो रहा तो ये अल्फा भी इंक्रीज होता और ये एंगल भी ये एंगल भी इंक्रीज होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एक ऐसा एंगल आता जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होती, उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज. क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज. समझ में आई बात? तो एक डिफरेंस याद रखो. एक्चुअली आई डिडंट मेंशन दैट. अभी तक हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे थे, बट द करेक्ट थिंग इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रहता. समझ गए? जब स्लिप हो रहा, जब स्लिप नहीं हो रहा. ठीक है. थीटा 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, जब भी है वो क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. पर जब स्लिप होना स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज. क्लियर?
समझ में आई ना बात? तो देखो मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे इस पे कोई फोर्स लगाया ही नहीं, इस पे कोई फोर्स लगाया ही नहीं, इधर इधर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये फ्रिक्शन जीरो हो जाता। फ्रिक्शन जीरो हो गया तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो हो जाता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही कॉन्टैक्ट फोर्स होता। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ वैसा वैसा फ्रिक्शन बढ़ते जाता और ये एंगल भी बढ़ते जाता। क्यों? क्योंकि नेट जो है ना पहले ऐसा होता, फिर ऐसा होता, फिर ऐसा होता। जैसा जैसा फ्रिक्शन बढ़ते जाता वैसा वैसा कॉन्टैक्ट फोर्स भी मतलब थोड़ा इंक्लाइन होते जाता वर्टिकल से, ठीक है, और ये एंगल बढ़ते जाता, ठीक है। समझ में आई बात? और जिस फोर्स पे मूव होना जस्ट स्टार्ट करता है ये ब्लॉक, जिस फोर्स पे, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पे मूव नहीं करा, 20 न्यूटन पे मूव नहीं करा, 30 पे मूव नहीं करा, 40 पे जस्ट स्टार्ट हो रहा मूव होना, जब जो है ना जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो इट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आई बात? ओके, सो एंगल ऑफ रिपोज इज फॉर लाइक लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ गए? एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया? लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आता? जब अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, इक्वल्स टू और एक्सीड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आई बात? जब भी आप फ्रिक्शनल फोर्स कम लगाते हैं लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। समझ में आई बात? ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब आता? हमेशा आता, वेदर अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉट, इट डजंट मैटर, जो भी एंगल आता है वो क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। समझ में आई बात? ठीक है, बट जब अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, समझ गए? एंगल ऑफ रिपोज से कम में इट डजंट स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा में स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। जब एंगल कम रहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, जब एंगल कम रहता एंगल ऑफ रिपोज से, हाँ, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता उस टाइम पे। ज्यादा जब रहता, जब भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन की स्पेशल कैटेगरी है वो, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करेंगे हम लोग। कहाँ पे लिखे थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन? यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। बोलो यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिपोज। सो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज the minimum angle at which the block will accelerate down the inclined plane। ठीक है, तो tan इनवर्स म्यू क्या आता है आपको? एंगल ऑफ रिपोज आता, एंगल ऑफ रिपोज आता। समझ गए? ओके, फाइन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? डेफिनेशन बोलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, बोलो भाई। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन द contact force and normal reaction is called angle of friction। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, angle of friction is defined irrespective of the frictional force being equal to or less than
the limiting friction. Do you agree? समझ में आई बात? तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, समझ में आया? तो मैं बताता हूं, देखो फॉर इंक्लाइंड प्लेन, देखो if theta is less than alpha, if theta is less than alpha or equal to alpha, the angle of friction is नहीं, angle of friction is theta, angle of friction is theta. समझ में आई बात? मैं बताता हूं, देखो I'll show you. Okay, I'll show you why. इधर देखो, इस पे वेट कितना ऐड कर रहा बोलो? mg वेट ऐड कर रहा, ठीक है? mg वेट इज mg. ओके, mg के दो कंपोनेंट्स है, एक mg cos थीटा, mg cos थीटा, एंड mg sin थीटा, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है. समझ में आई बात? नाउ थीटा इज लेस देन अल्फा. क्या है? थीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर नो स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. और नो एक्सेलरेशन बोल सकते, समझ गए? नो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. डू यू एग्री? ओके, अब ये पूरा अगर ले लिए तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर आता? ऊपर आता. ये नॉर्मल रिएक्शन है. फ्रिक्शन कितना आता है इस पे? फ्रिक्शन इधर आता, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहती? बोलो बोलो, जल्दी बोलो. mg sin थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. समझ में आई बात? और n की वैल्यू क्या रहती है? n इक्वल्स टू mg cos थीटा. समझ में आया? तो एक कंपोनेंट mg sin थीटा है, एक कंपोनेंट mg cos थीटा है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या रहता? कांटेक्ट फोर्स mg रहता. कांटेक्ट फोर्स देखो इधर, इधर रहता, इधर. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं F कांटेक्ट इक्वल्स टू mg आ गया. कैसे आया बोलो? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर करे तो mg cos m स्क्वायर g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अंडर रूट आता, mg स्क्वायर कॉमन ले लिए तो रूट के बाहर आ जाता mg sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता. तो ये आ गया mg. समझ में आई बात? अच्छा, ये जो दो कंपोनेंट्स है, जो cos थीटा है थीटा की तरफ रहता है, इसका मतलब ये थीटा हो जाता. समझ गए? क्लियर? ठीक है ना? अब देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन? थीटा. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? थीटा. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा. तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कब? इफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा. थीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा. समझ में आई बात? नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे. इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, क्या होता देखेंगे. ठीक है? सो लेट अस टेक दिस अगेन.
यहाँ पे क्या बदल जाता, बोलो क्या क्या बदल जाता है यहाँ पे? हाँ, एफ बदल जाता। हाँ, mg sin थीटा नीचे फोर्स आ रहा मगर उतना फ्रिक्शन लगा नहीं सकता इन, क्योंकि एक्सीड हो गया लिमिटिंग से, तो ये क्या हो जाता है, म्यू mg cos थीटा हो जाता। समझ गए? हाँ, इसका मतलब इसकी वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाती ऐसी, ठीक है, क्योंकि उतना नहीं आ रहा फ्रिक्शन जितना रिक्वायर्ड है, उतना नहीं आ रहा, तो थोड़ा छोटा कर लिया मैं। और कांटेक्ट फोर्स भी थोड़ा ऐसे आता, समझ गए? कांटेक्ट फोर्स भी थोड़ा ऐसे आता, और ये एंगल थीटा भी बदलाना है। ये एंगल थीटा नहीं रहता अभी, कुछ और रहता ये एंगल, समझ गए? ये एंगल कुछ और रहता, क्या रहता? बीटा रहता। क्या रहता? बीटा। समझ में आया? अब ये एंगल कैसे फाइंड करें, बोलो? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाँ, ये देखो, ये इधर भी लिख सकते ना, ये वेक्टर को इधर भी लिख सकते, समझ गए? स्लाइड कर सकते इस वेक्टर को इधर, नहीं रहता, वही बोल रहा हूँ ना, नहीं रहता। देखो पहले ये बोलो, इसको इधर ला सकते, इसको इधर ला सकते ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड म्यू एम जी कॉस थीटा है और एडजेसेंट साइड एम जी कॉस थीटा है, दिख रहा? ये म्यू एम जी कॉस थीटा है और ये साइड कितना है, एम जी कॉस थीटा है, समझ गए? तो tan बीटा इक्वल टू क्या आता, बोलो? tan, बोलो जल्दी बोलो, म्यू एम जी कॉस थीटा बाय एम जी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू म्यू, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ म्यू हो गया विच इज इक्वल टू अल्फा। therefore angle of friction equals angle of repose। समझ गए? तो कंक्लूजन क्या है, जब भी इंक्लिनेशन छोटा रहता या एंगल ऑफ रिपोज से कम रहता, जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पर जब थीटा बढ़ जाता, हाँ, जब एक्स, क्या कंफ्यूजन है? जब थीटा कम था, पहले देखो यहाँ पे, जब थीटा कम था, ठीक है, तो फ्रिक्शन एडजस्ट हो गया एमजी साइन थीटा को, ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आया, इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया। दैट मींस अल्फा, सॉरी, हाँ हाँ, बीटा इक्वल टू थीटा आया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो, ये बीटा ले लो, सो ये बीटा ले लो, बीटा इक्वल टू थीटा आया, समझ गए? यहाँ पे क्या आया, बीटा इक्वल टू अल्फा है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज करेंगे, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज के लिए यूज करेंगे, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं, बट विल यूज दैट। क्लियर पिक्चर आ गया ना? ओके। और ये इंक्लाइंड प्लेन्स में नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वहां पे भी आता, कहाँ पे आता? ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे और आप उस पर कुछ फोर्स लगा रहे, वहां पे भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? समझ में आई बात? ओके। कल एक प्रॉब्लम करे थे जिसमें एक ब्लॉक पे ब्लॉक था, राइट? और फोर्स किस पे लगाए थे, नीचे वाले पे लगाए थे, ठीक है? इस बार फोर्स इस पे लगाएंगे, इस बार फोर्स ऊपर वाले पे लगाएंगे, ठीक है?
और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लेंगे? इसका 0 लेंगे, इसका 0.25 लेंगे, ठीक है। ये लेंगे 4 kg और ये लेंगे 3 kg, ठीक है, चलता। ओके, नाउ नहीं 1 kg लेंगे, क्या लेंगे? 1 kg लेंगे, ठीक है। नाउ if F equals to 10 Newton, find A1 and A4, also find कैसे करेंगे? तो पहले क्या अज्यूम करते हैं हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कि दोनों एक साथ मूव हो रहे, ठीक है। तो अगर दोनों एक साथ मूव हो रहे तो लेट अस अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। अज्यूमिंग कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन एक्सेलरेशन? दोनों एक साथ मूव हो रहे, समझ गए? दैट मींस A1 इक्वल्स टू A4 इक्वल्स टू A। तो लेट अस सी क्या होता। क्या कितना कितना फोर्स लग रहा? 10 न्यूटन लग रहा। तो F इक्वल्स टू F नेट इक्वल्स टू MA। तो अगर ये अप्लाई करें तो क्या आता बोलो? 10 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इंटू A। तो A कितना आता? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? एक्सेलरेशन दोनों का। अब ये चेक करना कि देखो 4 kg पे नहीं 4 kg पे एक्चुअली फोर्स लगा रहा कौन? 4 kg पे एक्चुअली फोर्स फ्रिक्शन, क्योंकि कोई और फोर्स तो लग रहा नहीं हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन 4 kg ब्लॉक इज तो F लिमिटिंग क्या होता? F लिमिटिंग इक्वल टू म्यू इंटू M1G, क्योंकि ऊपर वजन कितना पड़ रहा है इसमें? 1 kg का। तो कितना आता म्यू? 0.25 इंटू 1 इंटू इक्वल टू कितना आया? 2.5 न्यूटन आया। समझ गए? F लिमिटिंग कितना है? 2.5 न्यूटन है। F रिक्वायर्ड कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? इक्वल्स टू M A इक्वल्स टू 5 इंटू 2 नहीं, नीचे कितना वेट है उसका? 4 है। 4 भाई फ्रिक्शन किस पे लग रहा? 4 kg पे लग रहा। एक और डायग्राम ड्रॉ करना क्या? ठीक है, वहीं लिख दे रहा हूँ। देखो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इधर लग रहा, ठीक है। इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इधर लग रहा, ठीक है। मैं थोड़ा बराबर लिखता हूँ। देखो ये 1 kg पे इधर लग रहा फ्रिक्शन, और 2 kg पे और 4 kg पे इधर लग रहा। समझ में आई बात? क्योंकि सी 1 kg उधर जाने की कोशिश कर रहा, तो 1 kg को रोकता उधर जाने से 4 kg वाला। इसका मतलब लेफ्ट पे लगा था, मतलब 1 kg वाले पे लेफ्ट पे लगता फ्रिक्शन, और 4 kg वाले को उधर खींचने वाला ही फ्रिक्शन है, राइट? तो उस पर राइट पे लगता। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है? 5 इंटू 4 20 न्यूटन है, मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 2.5 न्यूटन है। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 2.5 न्यूटन है। तो क्या इनफ है? ये नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर
कंक्लूजन इज, बोलो, both cannot have common acceleration. ठीक है, बोलो, क्या बोले? अच्छा, ए टू था ना, ए टू था, सॉरी, ए कितना था? टू था, ओके ओके। तो एनीवे, still 10 Newton is greater than 2.5, so therefore they cannot move with same acceleration, they cannot have a common acceleration. तो क्या करना, प्रॉब्लम फिर से करना, कैसे करना? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, और इनफैक्ट जो ऊपर का एक्सेलरेशन है डायरेक्टली बोल सकते बोला था मैं। ऊपर का एक्सेलरेशन क्या रहता है ऊपर वाले का, सॉरी नीचे वाले का, इस बार नीचे वाले का। देखो, जो भी फ्रिक्शन के दम पे मूव हो रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना रहता है? म्यू जी रहता है। बोला कितना रहता? म्यू जी। क्यों? उन पे लगता फोर्स म्यू एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम एम कैंसिल हो जाता, म्यू जी हो जाता। पर एनीवे मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक मिनट। तो ये कितने कितने न्यूटन लग रहा है फोर्स यहाँ पे? 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है? इस पे इधर लगता। कितना लगता? कितना लगता? 1. समझ में आई बात? और इस पे कितना लगता फोर्स? एक्चुअली यहाँ पे अलग आता, देखो, हाँ, म्यू m1g, म्यू m1g। नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता? ऊपर वाले मास पे, नीचे वाले मास पे नहीं। नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता? ऊपर वाले मास। 4 kg का नॉर्मल रिएक्शन किधर आता? इधर आता, जो विच इज नन ऑफ आवर कंसर्न, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आता? m1g आता, इस पे भी m1g आता। समझ में आई बात? तो m1g इस पे भी म्यू m1g रहता फ्रिक्शन, इस पे भी म्यू m1g रहता फ्रिक्शन। समझ में आई बात? ओके फाइन। अब बोलो, सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे फॉर m1। तो बोलो m1 का क्या आता? एफ नेट इक्वल्स टू m1 a1। इस बार a1 लेंगे, ठीक है? तो बोलो एफ नेट क्या है? 10 माइनस इसका एक्सेलरेशन a1 इधर लेंगे, इसका एक्सेलरेशन a2 इधर लेंगे, ठीक है? हाँ बोलो, 10 माइनस, हाँ म्यू वन क्या है? म्यू की वैल्यू क्या है? 0.25। m1 क्या है? इंटू 10 इक्वल टू 1 इंटू a1। तो क्या आता बोलो? 8.5, 7.5, तो a1 इक्वल्स टू 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब सेकेंड लॉ फॉर m4, मतलब मैं m4 लेता हूँ, m2 भी ले सकते हैं मगर कंफ्यूज होता है, बल्कि m4 ले रहा हूँ। ठीक है, बोलो एफ नेट इक्वल्स टू, ओके ठीक है। अब एफ नेट क्या लग रहा है इस पे? बोलो, एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, friction, म्यू m1g। तो म्यू m1g इक्वल्स टू m4 a4। कहाँ पे लिया a2? ठीक है, बोलो बोलो अम्मा जल्दी। 0, 5/8, 5/8 म्यू म्यू into 10 divided by 4 into f. तो क्या आता? बोलो जल्दी।
2.5 by 4 5 by 8. 0.625 आता. 5 by 8. 2.5 0.625. क्लियर. A4 आ गया, A1 भी आ गया. ठीक है. और एज एक्सपेक्टेड देखो A1 जो है ना बढ़ के आया. किससे ज्यादा आया? नहीं, जो A था ना पहले कॉमन A क्या आया था? कॉमन A 2 था ना. एक 2 से बढ़ के आया और एक 2 से कम आया. 2 से बढ़ के 7.5 आया, 2 से कम क्या आया? 0.625 आया. समझ गए? स्लिपिंग हो रही बोल के पूरा उधर फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रहा, पार्शियली ट्रांसफर हो रहा. तो इसका ऊपर वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाता, नीचे वाले का एक्सेलरेशन कम हो जाता. क्लियर? ओके. ठीक है. ओके. सपोज यू हैव ए लॉन रोलर. क्या है ये? लॉन रोलर है. क्या है? ओके. इसका मतलब जो क्रिकेट पिच पे यूज करते देखो, या फिर रोड पे भी यूज करते. हाँ, तो फ्लैट करने के लिए सरफेस. समझ गए? तो इधर जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है. अच्छा, ये तो रोलर हो गया. ओके. बिफोर गोइंग इनटू फ्रिक्शन. अच्छा, रोलिंग में समझो कि फ्रिक्शन नहीं है. रोलिंग में समझो फ्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पे इसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है, तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इसको मूव करने के लिए? इफ यू आर पुलिंग अ लॉन रोलर एट एन एंगल थीटा, इफ यू आर पुलिंग अ लॉन रोलर एट एन एंगल थीटा, इसका मतलब ये लॉन रोलर का जो एंगल है, आप जो एंगल से पुल कर रहे हैं इसको, वो क्या है? इक्वल टू थीटा है. तो बोलो एंगल कैसे फाइंड करें? ये एंगल कैसे फाइंड, सॉरी ये फोर्स कैसे फाइंड करें? बोलो. ये एंगल थीटा है और आप इस पे फोर्स लगा रहे F. इस पे कितना फोर्स लगा रहे? F लगा रहे फोर्स. ठीक है. और ये पुल कर रहे या पुश कर रहे? पुल कर रहे. ठीक है. क्लियर? ओके, फाइन. और सपोज देयर इज अ फ्रिक्शन म्यू. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है. तो नो फॉरगेट वेदर दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. समझ जाओगे फ्रिक्शन है. म्यू, म्यू कितना है? फ्रिक्शन है. ठीक है. अब मेरे को ये बोलो, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द लॉन रोलर? लॉन रोलर को पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड क्या है? बोलो. कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम? बोलो कैसे करेंगे? तो इसको आप पहले लिखोगे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पे. ठीक है. इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लिखो. क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक mg नीचे एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की बात में करेंगे. ये F के दो कंपोनेंट्स है, राइट? एक F cos थीटा है और एक क्या है?
एफ साइन थीटा है, और ये एम जी थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ओके। अब ये बोलो मेरे को, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता, बोलो। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता, ठीक है ना। अगर इसको मूव करना है हमको, ये लॉन रोलर को मूव करना है, तो जो फोर्स दैट इज ट्राइंग टू मूव दिस लॉन रोलर मस्ट बी एटलीस्ट equal to or greater than, or it must be greater than or equal to limiting friction. It must be greater than or equal to limiting friction. तो पहले limiting friction क्या होता बोलो, F star equals to mu into normal reaction, which is equal to mu into mg minus F cos theta, F sin theta, right? mg minus F sin theta. रीजन क्या है, माइनस क्यों कर रहा हूं मैं F sin theta? क्योंकि F का एक कंपोनेंट जो है ना नॉर्मल रिएक्शन कम कर रहा, ऊपर की तरफ लग रहा, एक F का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, F sin थीटा। तो ये F sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए थोड़ा वजन कम हो जाता है उसका, और उसका वेट कम हो जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। समझ गए, क्लियर? हाँ, म्यू कॉमन लिया ना, n इक्वल्स टू, बोलो जल्दी, n इक्वल्स टू mg माइनस mg माइनस f sin थीटा। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता अम्मा, बोलो। म्यू इंटू एन, एन की जगह ये डाले तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता, ठीक है। और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, क्लियर? नाउ इफ, देखो, इफ which is the force that is trying to move the block, which component, F cos theta. F cos theta जो है ना मूव करने में जा रहा, F sin theta जो है ना नॉर्मल रिएक्शन कम करने में जा रहा, ठीक है। तो बोलो, if F cos theta is greater than or equal to F star, the roller moves. तो बोलो क्या लिखेंगे, F cos theta must be greater than or equal to mu mg माइनस एफ साइन थीटा, कॉमन ले लो। अब एफ एक जगह लेने से क्या आता, बोलो, बोलो, एफ इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। समझ गए? तो एफ मस्ट बी समझ में आई बात? ओके, तो कंक्लूजन क्या है, दिस वैल्यू ओनली देन लॉन रोलर विल मूव, अदरवाइज लॉन रोलर विल नॉट मूव, ठीक है। दिस इज पुलिंग ए लॉन रोलर, ठीक है। दिस इज व्हाट, इनफैक्ट लॉन रोलर क्या कुछ भी पुल करना है, मतलब इवन सूटकेस पुल करना है तो इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता, ठीक है, क्लियर। अगर इससे कम लगाए तो मूव नहीं होता, इससे ज्यादा लगाना पड़ता। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट लेट अस सी पुशिंग ए लॉन रोलर। अगर पुश करे तो क्या क्या होता है देखेंगे, ठीक है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो अगर पुश करना है तो क्या होता बोलो, ये जो है ना इधर आ जाता ऐसा, ठीक है, और ये फोर्स जो है ना ऐसा हो जाता,
तो ये आपका f हो गया, इसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, m इधर लिख दे रहा हूँ, इसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक f sin थीटा, मगर f sin थीटा इस बार किधर रहता, नीचे की तरफ रहता, राइट, f sin थीटा नीचे की तरफ रहता और f cos थीटा इधर ही रहता, ठीक है। और ये एंगल कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं एंगल हमेशा, तो ये थीटा ये है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। फोर्स इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलता ना, ओके। अब मेरे को ये बोलो, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, mg प्लस f cos थीटा है, डू यू सी दैट, सॉरी f sin थीटा, f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा, क्यों, क्योंकि f sin थीटा इज पुशिंग और f sin थीटा mg के साथ है, दिखाई दे रहा, लास्ट केस में f sin थीटा mg के अगेंस्ट था, तो नॉर्मल रिएक्शन कम कर रहा था, इस बार जो है ना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहा, इसलिए n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा होता। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता बोलो, f स्टार इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू mg प्लस f sin थीटा, समझ गए। इफ which is the force which is trying to move the block in horizontal, f cos theta, so if f cos theta is greater than or equal to f star, the roller moves, the roller moves. तो बोलो क्या आता, बोलो अम्मा, F cos theta. हाँ, F cos theta by mg plus f sin theta. must be greater than mu mg mg plus f sin theta. समझ गए, तो क्या आता, F cos theta by mg plus f sin theta. F cos theta minus mu sin theta. f कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस Mu sin theta. mu Sin theta. sin theta must be greater than or equal to Mu mg. mu mg, that means f must be greater than Mu mg by f cos theta minus mu sin theta. mu mg by F cos theta. समझ में आई बात, ओके। तो लास्ट टाइम जो है ना फोर्स क्या आया था, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आया था, इस बार नहीं वो छोड़ दो, वो तो कर दिए हम लोग, लास्ट में क्या आया बोलो एक्सप्रेशन, पहले जो है ना म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यहाँ पे म्यू एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आया, लास्ट टाइम डिनोमिनेटर क्या आया था, बड़ा आया था, इस बार डिनोमिनेटर क्या आया, छोटा आया। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू कम है, जब डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ज्यादा है, समझ गए। तो इज इट इजियर टू पुल ए लॉन रोलर और पुश ए लॉन रोलर, Push. मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ पुल क्या आई थी, एफ पुश क्या है,
इसकी वैल्यू बढ़ के F push. F push. बोलो अम्मा। F push. थोड़ा सोचो, Pull करना आसान है। पहले ये बोलो वैल्यू कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। F push की वैल्यू push बड़ी एफ पुश की वैल्यू ज्यादा, कैसे मालूम ज्यादा है? डिनोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, वैल्यू बड़ी है। डिनोमिनेटर बड़ा रहे तो वैल्यू कम, डिनोमिनेटर छोटा रहे तो वैल्यू ज्यादा। ऊपर वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू कम है, समझ गए? देयरफॉर पुलिंग द रोलर will be समझ में आई बात? और एक बात गौर करो यहाँ पे, कभी कभी देखो पुलिंग का जो केस है उसमें कभी नेगेटिव आ सकता, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ सकती, नहीं आ सकती। वो नहीं अम्मा, पहले एक्सप्रेशन की बात करो। ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती, मगर ये वैल्यू कभी कभी नेगेटिव हो सकती ना, कुछ वैल्यूज ऑफ म्यू के लिए, कुछ वैल्यूज ऑफ म्यू के लिए ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती। डू यू अग्री? समझ में आई बात? अरे भाई इसका वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती ना। देखो ये cos थीटा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल। सपोज थीटा 30 डिग्री है और थीटा 60 डिग्री है। थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो ये 1/2 हो जाता, ये √3/2 हो जाता, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है, तो ये नेगेटिव नहीं हुआ? हो गया ना? समझ में आई बात? आई ना बात समझ में? तो नेगेटिव क्यों आ रहा? नेगेटिव क्यों आ रहा बोलो? ये वाला जो है ना 60 डिग्री पे आप पुश कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात? देखो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ाते जा रहे हैं आप। देखो F cos थीटा इज ट्राइंग टू मूव, करेक्ट, बट F sin थीटा क्या कर रहा? फ्रिक्शन बढ़ा दे रहा। और आप ज्यादा पुश कर रहे हो तो ज्यादा बढ़ा देता फ्रिक्शन, और भी पुश कर रहे हो तो और भी बढ़ा देता। मतलब ये भी बढ़ रहा मगर ये ज्यादा बढ़ रहा, समझ गए? तो मूव होता ही नहीं, तो खाली ब्रेक लगते जाता, ब्रेक लगते जाता, ब्रेक लगते जाता। इसलिए वैल्यू क्या है आपको? नेगेटिव आई। नेगेटिव आई बोले तो क्या? पुश मत करो, पुल करो बोल रहा हूँ, मतलब पुश करके फायदा नहीं है बोल रहा। समझ में ये बात? इसलिए बैग को खींच के जाते, कोई भी ढकेल के नहीं जाता एयरपोर्ट में, समझ गए? कोई देखे क्या सामने ऐसा ढकेल के जा रहा? सो क्यों? ढकेल के जब जाते कभी कभी ब्रेक लगता, समझ गए? पड़ जाता नहीं ब्रेक, जब जरा एंगल बड़ा हो जाता ब्रेक लग जाता, समझ गए? पुल करते जब ब्रेक लगा, कभी नहीं लगा, समझ गए? क्लियर? ठीक है? किसी भी चीज को पुल करते, पुश नहीं करते, समझे? बच्चे को गेमिंग रूम में से निकालने का है, समझे? पुश नहीं करते, पुल करते, समझ गए? क्लियर? पुश करे तो अटक जाता, उन्हें नहीं जाता, समझ गए? अगर आपके पास कुत्ता है नहीं आ रहा तो पुश नहीं करते कुत्ते को, पुल करते, समझ गए? आसानी से आता, पुश करे तो ब्रेक पड़ते रहते, समझ गए? क्लियर? ओके? अच्छा ये बोलो, ये बोलो, ये जो सेकंड पुशिंग का केस है, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट एंगल क्या है पुशिंग का? 30 डिग्री। अरे भाई बेस्ट एंगल क्या है पुशिंग का? भाई थोड़ा, पुशिंग का बेस्ट एंगल क्या है अम्मा बोलो? वाह 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 वाह, 90 डिग्री से कैसा पुश करते हैं जी?
अरे बोलो, बेस्ट एंगल पुशिंग का क्या है? 0. वेरी गुड। क्या है? 0 है। बोले 0 बोले। पुशिंग का बेस्ट एंगल 0 बोले कोई? नहीं, उससे पहले हाँ जोर से बोलो थोड़ा। देखो पुशिंग का बेस्ट एंगल क्या है? 0। रीजन क्या है बोलो? सारा जो है ना, अब हॉरिजॉन्टल में लगाना फोर्स, वर्टिकल में लगाए तो नुकसान हो रहा है आपका। क्यों? आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे पुशिंग में। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। तो बेस्ट एंगल फॉर पुशिंग इज व्हाट? F2 is mu mg. ठहरो ठहरो, सबर, ठहरो, 1 मिनट। बेस्ट एंगल फॉर पुशिंग इज 0 degrees, since cos 0 is 1 and sin 0 is 0. So this angle gives the highest denominator. Therefore, minimum value of F push. Therefore, minimum value of, समझ में आई बात? Clear? What will be the best angle for pulling? 90 करे तो कहाँ जाता? बाजू ऊपर ही जाता। वेरी गुड, ठीक है। आप लोग सोच रहे थोड़ा 90 इसलिए बोले क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होता बोल के, मगर ठीक है, एक तरीके से फायदा हो रहा है 90 डिग्रीज पे, है नहीं? 90 डिग्रीज पे एक फायदा हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा, फ्रिक्शन कम हो रहा। मगर एक और चीज एस्पेक्ट आप छोड़ दिए कि जब पूरा आप अगर नॉर्मल रिएक्शन कम करने में लगा दे रहे फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन लेके जाता? उसको कोई भी नहीं लेके जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा, सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा, जैसा जैसा एंगल बढ़ाते जा रहे, एक अपने को एडवांटेज हो रहा और एक अपने को डिसएडवांटेज हो रहा। एडवांटेज क्या हो रहा? नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg माइनस एफ साइन थीटा। तो समझ गए? mg माइनस एफ, 1 मिनट, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो जैसा जैसा एंगल बढ़ा रहे साइन थीटा बढ़ रहा और एफ साइन थीटा बढ़ रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा। ठीक है, अच्छी बात है, मगर एक डिसएडवांटेज भी हो रहा है अपने को। क्या हो रहा? एफ कॉस थीटा कम हो जा रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइजिंग एंगल रहता है जिसमें जो है ना अपने को बेस्ट आउटपुट आता। समझ गए? क्लियर? तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। सो द बेस्ट एंगल फॉर फाइंड द, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द बेस्ट एंगल फॉर पुलिंग। एक्चुअली द बेस्ट एंगल फॉर पुलिंग विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ म्यू। समझ गए? जब वैल्यू ऑफ म्यू 0 है तो बेस्ट एंगल 0 डिग्रीज होता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है इसमें, तो नॉर्मल रिएक्शन से क्या लेना देना अपने को? तो पूरा जो है ना हम लोग मूव करने में लगाएंगे। ठीक है, पर जब फ्रिक्शन आ जाता तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सोचना पड़ता। समझ में आई बात? तो देखेंगे बेस्ट एंगल फॉर पुलिंग देखेंगे। तो बेस्ट एंगल फॉर पुलिंग क्या होता? ठीक है, एफ नेट हॉरिजॉन्टल क्या होता बोलो? एफ नेट हॉरिजॉन्टल क्या होता? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट क्या होता बोलो? mg cos थीटा माइनस म्यू इंटू mg बाय, नहीं, एफ नेट क्या आया था भाई? म्यू mg बाय, क्या आया था भाई? एफ नेट cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा प्लस आया था। ये पुलिंग में एफ नेट फोर्स आया था। अब वी नीड टू फाइंड द मिनिमा ऑफ एफ नेट। फाइंड
मिनिमा ऑफ एफ नेट। ठीक है, मिनिमा मतलब एफ नेट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती फॉर द ब्लॉक टू मूव, फॉर द ब्लॉक टू, अच्छा रोलर टू मूव, ब्लॉक को भी चलता है, ब्लॉक के लिए भी चलता। अगर वो रोलर निकाल के ब्लॉक भी रख दिए ना तो भी सेम ही रहता फॉर द, समझ में आई बात? तो मिनिमम वैल्यू एक्चुअली for what theta will f net be minimum, f net be minimum, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी ये एक फंक्शन ऑफ थीटा है, क्या है? फंक्शन ऑफ थीटा है, दिख रहा? ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ थीटा क्या है? म्यू एम जी बाय, बोलो भाई, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है। ये एक फंक्शन ऑफ थीटा है। एक फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा तब रहता जब उसका डेरिवेटिव जीरो रहता। ये बहुत बार डिस्कस करें हम, समझ गए? कोई भी फंक्शन है ऐसा तो मैक्सिमम वैल्यू जब रहती है उसकी और मिनिमम वैल्यू जब रहती है उसका स्लोप जीरो हो जाता, राइट? स्लोप मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जीरो रहता। जहां भी डेरिवेटिव जीरो है वहां पे इधर मैक्सिमा है और मिनिमा। समझ में आई बात? अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रहा तो मैक्सिमा रहता, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा तो मिनिमा रहता। ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है? अब हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका डेरिवेटिव जीरो क्या थीटा पे आता, वही थीटा पे मिनिमा रहता। ठीक है, तो लेट अस फाइंड द डेरिवेटिव। हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव? बोलो। एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल्स टू, बोलो भाई, कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू एम जी कांस्टेंट है। हाँ, अब ये 1 बाई समथिंग है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता। क्या होता? तो इनटू क्या कर रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट ऐसे लिख दे के माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलता? तो देखो क्या आता है, माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। अब क्या करूं, ऐसे ही छोड़ दूं? क्या अप्लाई करूं? व्हाट शुड आई अप्लाई? देखो थीटा की जगह कुछ और था ना, सिर्फ 1 बाई थीटा रहता तो माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर लिख के छोड़ देता, पर थीटा की जगह कुछ और है तो क्या अप्लाई करना? कौन सा रूल? चेन रूल। क्या माँ? अगर खाली 1 बाई थीटा रहता ना तो माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर लिख के छोड़ देता, पर थीटा की जगह कुछ और है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा है थीटा की जगह, तो इनटू कॉस थीटा कर देता हूँ। अगर थीटा की जगह लॉग थीटा है तो 1 बाई थीटा कर देता हूँ। अगर थीटा की जगह कुछ भी, समझ गए, जो है उसका ई पावर थीटा है तो ई पावर थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, चेन रूल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो चेन रूल में क्या होता बोलो, क्या 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 मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे? इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है डेरिवेटिव? माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। समझ गए? आ गया डेरिवेटिव, आ गया, ये है डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आई बात? ये इक्वल टू जीरो रहना, ये इक्वल टू जीरो रहना। ठीक है, फॉर मिनिमा एफ डैश ऑफ थीटा मस्ट बी जीरो। तो अगर ये इक्वल टू जीरो लगा है तो डिनोमिनेटर तो पूरा, मतलब ये पार्ट तो पूरा जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता, बच क्या जाता? ये इक्वल टू जीरो। हाँ बोलो, तो क्या बच जाता? देयरफॉर माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो।
तो क्या आता tan थीटा इक्वल टू म्यू और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। सो पुलिंग में बेस्ट एंगल क्या है? पुलिंग का एंगल ऑफ रिपोज है, समझ गए? देयरफॉर बोलो अम्मा। Therefore, the best angle for pulling the roller is equal to the angle of पुशिंग के लिए बेस्ट एंगल क्या है? 0। पुलिंग के लिए बेस्ट एंगल क्या है? पुलिंग के लिए बेस्ट एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आई बात? अच्छा, हम लोग करे रोलर के लिए, बट इट इज ट्रू फॉर ब्लॉक्स ऑल्सो। एक ब्लॉक है कोई सरफेस पे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हाँ, पुशिंग के लिए बेस्ट एंगल क्या है बोले तो 0 बोलो, पुलिंग के लिए बेस्ट एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? और अगर अदर देन एंगल ऑफ रिपोज, अदर देन 0 डिग्रीज कोई भी एंगल लगा रहे तो नेट ये जो क्या बोलते हैं मिनिमम नेट फोर्स टू मूव द ब्लॉक क्या रहता? पुशिंग में म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा रहता पुशिंग में। पुलिंग में मिनिमम फोर्स क्या रहता? म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखो भाई, ये क्या है? ये एफ नेट क्या है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। तो यहाँ पे ये मिनिमम, देखो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? मिनिमम वैल्यूज ऑफ फोर्सेस, वैल्यूज ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक्स। इन केस ऑफ पुलिंग ये है, इन केस ऑफ पुशिंग ये है। समझ में आई बात? ये जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू टू पुश और पुल है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहती? कौन से एंगल पे रहती वो हम लोग फाइंड करें। समझ में आई बात? देखो भाई, इतने से कम दिए तो मूव नहीं होते, इतने से ज्यादा दिए तो मूव होते। ठीक है, ये बात हो गई। ये दो मिनिमम वैल्यूज है, इससे कम लगाए तो मूव नहीं होते, इससे ज्यादा लगाए तो मूव होते। ठीक है, समझ में आया? मगर ये जो मिनिमम वैल्यूज है पुशिंग और पुलिंग के, वो कौन से थीटा पे लीस्ट रहते? कौन से थीटा पे लीस्ट रहते? वो जो है ना 0 डिग्री से और एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? तो यहाँ पे डबल 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 है मिनिमम। ये तो मिनिमम वैल्यू फॉर मूविंग है। वो मिनिमम वैल्यू की वैल्यू लिस्ट कब रहती? वो जो है ना पुशिंग के केस में 0 पे रहती और पुलिंग के केस में एंगल ऑफ रिपोज पे रहती। समझ में आई बात? समझ में आ? एक और होता पुलिंग में, एक और रहता, इफ पुलिंग फोर्स, देखो इफ एफ पुल exceeds mg by sin theta, then the roller मतलब ब्लॉक भी होता, हाँ, loses contact with ground। रीजन क्या है? देखो mg नीचे है फोर्स, mg कितना है? फोर्स है, सॉरी वेट कितना है? mg है। और आप फोर्स कितना लगा रहे? F लगा रहे। कितना लगा रहे? F लगा रहे हैं, पुल कर रहे। ठीक है, अब F के दो कंपोनेंट्स है, क्या क्या है? ये F cos थीटा है और ये F sin थीटा है। समझ में आई बात? ओके, इफ बोलो
बोलो भाई, बोलो। If f sin theta is greater than mg, the body loses contact with ground. That is, if f is greater than mg by sin theta. वही लिखा ना ऊपर, ठीक है, क्लियर। बहुत ही ज्यादा पुल कर दिया आप, ज्यादा फोर्स लगा के, तो क्या होता, ऊपर आ जाता, मतलब इट विल लूज कांटेक्ट। समझ गए? पूरे केसेस याद रखना आपने, ठीक है, क्लियर। क्या बोले? हाँ, ज्यादा पुश करे तो क्या होता, कुछ भी हो सकता। क्या माँ? किसमें? हाँ, फ्रिक्शन बढ़ता, मगर जो फोर्स उसको ढकेल रहा है वो भी बढ़ता। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ग्रेटर है, फ्रिक्शन ग्रेटर है या एफ कॉस थीटा ग्रेटर है। अगर फ्रिक्शन ग्रेटर है एफ कॉस थीटा से तो मूव करता ही नहीं। समझ में ये बात नहीं आई? जब पुश कर रहे हैं आप, एफ से पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स है, क्या क्या है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा है, राइट। अल्लाह अकबर। एफ कॉस थीटा है, और ये एफ साइन थीटा है, ठीक है। और mg भी नीचे है, mg भी नीचे है, वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं, बाजू। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एफ साइन थीटा प्लस mg। और फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू n इक्वल्स टू म्यू इंटू, ये ब्रैकेट में लेना पड़ता, ठीक है। ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, राइट। इफ f is greater than or equal to mg cos theta, the body doesn't move, body or the object doesn't move, लिखो, the object doesn't move। doesn't accelerate लिखना, doesn't, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो क्या आता, कंडीशन क्या आता, बोलो। म्यू, इफ म्यू into f sin theta plus mg is greater than, बोलो। ओके, तो क्या आता, बोलो। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता, म्यू mg बाय
हाँ mg cos theta minus 2 साल ट्राई करो पढ़ने, बाद में बहुत टाइम रहता, जब सीट नहीं आती ना खाली बाहर ही बैठना पड़ता, बहुत खाली टाइम रहता, मरने तक खाली टाइम रहता। ट्राई करो 2 साल, आई तो अच्छा है सीट, नहीं आई तो अच्छा एंजॉय कर सकते, आई तो परेशानी, मेहनत करना पड़ता लाइफ, दूसरों को सपोर्ट करना पड़ता, राइट बोला मैं? कुछ बन गए तो लोग आप पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है? नहीं पढ़ा तो अच्छा है, और दूसरों पर डिपेंड हो सकते, राइट? नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो भी एक रहती चॉइस लाइफ में। बोलो बोलो। mg cos theta plus mg cos theta minus mu and तो बोलो। mg cos theta minus mu by f is greater than or equal to बोलो। mg mg कॉमन ले लो, cos theta minus mu cos थीटा minus mu म्यू वो sin theta म्यू 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 बोलो। by sin theta by mu sin theta mu sin म्यू साइन थीटा, समझ में आया? क्लियर? तो ये क्या है, ये पुशिंग के टाइम पे मिनिमम फोर्स इतना लगाना पड़ता है आपको, पुशिंग के टाइम पे इतना मिनिमम फोर्स अगर लगाए तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेलरेट। समझ में ये बात? क्लियर? अच्छा, अच्छा, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू पुशिंग में इट शुड बी लेस। रीजन क्या? फॉर एफ टू बी पॉजिटिव, देखो यहाँ पे फॉर एफ टू बी पॉजिटिव, मीनिंग क्या है एफ टू बी पॉजिटिव का? दैट मीन्स इफ यू आर विलिंग टू पुश, समझ गया? एफ नेगेटिव हो गया मतलब क्या? पुश नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। फॉर एफ टू बी पॉजिटिव बोलो क्या? cos थीटा must be greater than mu, cos theta must be greater than mu, और theta must be less than or equal to, और greater than or equal to लिखेंगे यहाँ पे less than or equal to cos इनवर्स mu। मैं ऑलरेडी बोला, क्या बोला कि जब cos इधर से उधर जाता तो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता, लेस देन का ग्रेटर देन, tan जब जाता कुछ नहीं होता, sin जब जाता कुछ नहीं होता, क्योंकि वो दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस है। ये cos क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन, समझ गए? थीटा मस्ट बी लेस देन। तो पुशिंग में थीटा जितना कम रहा उतना अच्छा, थीटा जितना कम रहा उतना अच्छा। हाँ, इफ थीटा एक्सिड्स exceeds cos inverse mu, the body, the object doesn't move no matter how much force we apply। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल एक एक्सट्रीम केस देता हूँ, आप 90 डिग्रीज पे लगा रहे फोर्स, 90 डिग्रीज पे ऊपर से लगा रहे, तो क्या मूव होता? ब्लॉक नहीं होता।
80 पे लगाए तो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट किस में जा रहा, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करने में जा रहा। आपका बहुत छोटा कंपोनेंट जो है ना मूव करने में जा रहा, तो इनफैक्ट वो मूव करने से रोकता, क्योंकि इट विल अप्लाई द ब्रेक बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड। समझ में आई बात? ठीक है, तो एंगल अब और बढ़ा दिए आप। क्या बढ़ा दिए? बढ़ा दिए, समझ गए? मतलब कम कर दिया एंगल। हॉरिजॉन्टल से देख रहे हैं ना एंगल, पहले 90 डिग्री था, 80 नहीं हो रहा, 70 नहीं हो रहा, ठीक है, 60 पे होना स्टार्ट करता। दैट जो 60 डिग्री आ रहा ना, वो cos इनवर्स ऑफ म्यू रहता। वो जो 60 डिग्री पे जहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो रहा, वो क्या रहता? cos इनवर्स ऑफ म्यू रहता। cos इनवर्स ऑफ म्यू से अगर और भी कम करे तो मूव होता, पर cos इनवर्स ऑफ म्यू से ज्यादा कर दिया एंगल तो मूव नहीं होता। आप कितना भी फोर्स लगा लो, मस्ट बी लेस देन cos इनवर्स म्यू, मस्ट बी लेस देन cos इनवर्स म्यू। क्लियर? समझ में आई बात? कब स्टार्ट हुआ था क्लास? 11:30. नहीं, वही ओके, एनीवे सबर ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा, फॉर इन ऑर्डर फॉर ए कार टू, इन ऑर्डर फॉर ए कार टू मूव on a road of radius r, with speed v, speed s देखे अम्मा के भी तो, हाँ, speed v, minimum coefficient of friction required। देखो एक कार है जो सर्कल पे जा रहा, समझ गए? रोड ऑफ रेडियस आर, मतलब रेडियस किसको रहता? सर्कल को ही रहता ना। तो इफ ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड v, minimum coefficient of friction required is, minimum coefficient of friction required is, सपोज ये कार ये सर्कल पे जा रही, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? r है, जिसका रेडियस क्या है? r है, इसका रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस है r। अब ये कार है, अब ये कार अगर एग्जीक्यूट करना है सर्कल पे, इधर कार है ना आपका, अगर ये कार सर्कल पे जाना है तो उस पे क्या फोर्स रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। क्या फोर्स रिक्वायर्ड है? F सेंट्रीपिटल, ठीक है। अगर इसका मास m है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है बोलो? तो F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv square by r। Now who is providing this centripetal force? बोलो अम्मा। करेक्ट। फ्रिक्शन, समझ गए? मगर अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है इतना, तो F लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन दिस रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ गए? देयरफॉर F must be, or F limiting must be greater than F, which is equal to mv square by r। अब मेरे को ये बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या है फॉर्मूला? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मगर कार का नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है रोड पे? कितना रहता? mg। बोलो तो क्या लिखना है यहाँ पे? mv स्क्वायर बाय r। तो mm कैंसिल, that means mu must be greater than
RG. mu must be greater than or equal to v square by rg. यहाँ पे क्या कंक्लूजन है? Coefficient of friction between the tires and the car will determine whether the car will execute the circle or it will slip there. समझ गए? इसका मतलब क्या? बड़ी कार रहने दो, छोटी कार रहने दो, हल्की कार रहने दो, वजन कार रहने दो, सबका लिमिट सेम रहता. समझ गए? सबका स्पीड का लिमिट सेम रहता. स्पीड अगर if mu is fixed, if mu is fixed, if mu is fixed, we must have limits. We must have a limit. क्या है वो लिमिट? बोलो. V must be less than or equal to mu rg अंडर रूट. समझ में आई बात? मतलब म्यू अगर फिक्स्ड है तो वेलोसिटी इससे कम रहना, इससे ज्यादा गए तो स्लिप हो जाती कार. और अगर एक कार स्लिप हुई तो पूरे स्लिप होते, एक कार स्लिप हो गई तो पूरे स्लिप होते. मतलब वजन वाली का ज्यादा फ्रिक्शन, मतलब वजन वाले का रेंज ज्यादा, हल्के वाले का रेंज कम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू m पे डिपेंड कर रही नहीं कर रही ना, म्यू पे डिपेंड कर रही. इसलिए जब भी देखो जब भी ऑयल गिरता, एक कार स्लिप हो गई रोड पे तो पूरे कार स्लिप हो जाते, पूरे मोटरसाइकिल स्लिप हो जाते. क्यों? क्योंकि हल्के रहने दो या वजन रहने दो, ये जो लिमिट है स्पीड का जो स्लिप होने का है वो डिपेंड करता ही नहीं मास पे. ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? ओके. अच्छा, ये क्वेश्चन करो अम्मा. नहीं, मुश्किल है. एक मिनट, एक मिनट. अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बोलो. ये एंगल 45 डिग्री से, ये एंगल क्या है? 45 डिग्री से. मतलब वो कितना सर्कल है अम्मा? 1/8. नहीं, वन बाय 8 कैसा होता? 36 degree. ये 45 नहीं, 90 डिग्री से. अब बोलो. हाँ तो 4 ओके, मतलब एक क्वाड्रेंट. ओके. 1/4 थे. क्वाड्रेंट. तो अब बोलो मेरे को, हाँ, अब मेरे को ये बोलो, सपोज इस पे एक बाइक वाला जो है ना, ये रोड है अम्मा, ये पिंक कलर की रोड है, मतलब रोड है. ये रोड पे अगर एक बाइक वाला कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, किससे जा रहा? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा. समझ में आई बात? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा. और इसका रेडियस क्या है? आर है. रेडियस क्या है? आर. ये सर्कल का रेडियस क्या है? आर है. अब इस पे जो है ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा कोई बंदा, या इस पे कोई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा,
ऐसे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे और पॉइंट ई पे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? ये इस पे जा रहा ऐसे, ठीक है, तो क्या रहता? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता भाई? पॉइंट ए पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? अलोंग द मोशन रहता, अगेंस्ट द मोशन रहता? बोलो। क्यों बोल रहे हैं अगेंस्ट द मोशन? नहीं रहता अम्मा, वही तो है ना, वही तो है। देखो पहले मेरा स्टेटमेंट सुनो, इट इज गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट इज गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये जो सर्कल के अलोंग है उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो लगना उस पे। क्या लगना? नेट फोर्स जीरो लगना। इसका मतलब जब आपका गाड़ी इधर है तो mg sin थीटा तो इधर आता, अनबैलेंस्ड है। mg sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज अलोंग यहाँ पे, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है पूरा mg इधर लग रहा है, mg sin थीटा cos थीटा तो कुछ लग रहा नहीं इधर, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द डायरेक्शन में, तो जरूरत ही नहीं है फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या रहता? जीरो रहता। यहाँ पे क्या रहता? अलोंग रहता। यहाँ पे जीरो रहता। बी पे, सी पे क्या है? mg sin थीटा का इधर आता, तो फ्रिक्शन जो है ना अगेंस्ट रहता। यहाँ पे क्या रहता? जीरो रहता। और यहाँ पे क्या रहता? देखो भाई, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे तो नेट फोर्स जीरो लगना। नेट फोर्स जीरो लगना मतलब क्या? हाँ, नेट फोर्स जीरो लगना मतलब क्या? हाँ देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, ए पे क्या करता मालूम उन्हें? ए पे क्या करता? गाड़ी रेस करता। गाड़ी क्या करता? रेस करता। और टायर क्या करता? टायर पीछे की तरफ फिरते रहता, और टायर रोड पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाता, और रोड टायर पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाती। समझ गए? जब बी पे जाता कुछ नहीं करता, ब्रेक भी छोड़ देता और एक्सेलरेटर भी छोड़ देता। जब सी पे जाता ब्रेक मारता, जब ब्रेक मारते फ्रिक्शन पीछे की तरफ आता। देखो कार का टायर ऑब्जर्व करो, जब रेस करते फ्रिक्शन आगे की तरफ आता, जब ब्रेक मारते फ्रिक्शन पीछे की तरफ आता। समझ गए? तो ए पे रेस करता हो, एक्सेलरेट करता, और फ्रिक्शन टायर पे आगे की तरफ आता, मतलब गाड़ी को रोड खींच रही आगे, ठीक है। बी पे छोड़ देता, दोनों बैलेंस है बोल के। पर सी पे जब आया कांस्टेंट स्पीड से जाना है, स्पीड इंक्रीज नहीं करना है, तो ब्रेक मारता। जब ब्रेक मारता तो पीछे की तरफ आता फोर्स। समझ गए? फिर डी पे छोड़ देता, पर फिर जब ई पे आ जाता ना, फिर रेस करना पड़ता उसको, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ। समझ में आई बात? नाउ इफ दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज v, इफ देखो, if mass of vehicle is m, its speed is v, which is constant throughout motion, find the frictional force। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एट गिवन पॉइंट्स ए पे क्या रहता? पहले बोलो, F इक्वल्स टू mg sin 45। mg क्यों बोला sin 45? क्योंकि उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज रहता। ये जो इंक्लिनेशन है क्या रहता? 45 डिग्रीज रहता। क्यों 45 रहता? ये 90 है, ये दो एंगल्स इक्वल है दिख रहे, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये भी 45 होता। समझ में आया क्यों 45 होता? ये दोनों के बीच में 45 है ना? हाँ, mg किधर लग रहा? इधर लग रहा। और ये क्या रहता? mg sin 45 रहता, ये mg cos 40। तो mg sin 45 अगेंस्ट लग रहा है ना फोर्स, तो उतना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ता अपने को। ये लिमिटिंग है क्या? नहीं, ये लिमिटिंग से कम है, मतलब लिमिटिंग इससे ज्यादा रहना जरूरी है, नहीं तो स्लिप हो जाती गाड़ी। अच्छा, एट बी
F equals to mg sin 90. 0. C, F equals to mg sin 45. अच्छा ये क्या है? along है, ये against, along v against v. डायरेक्शन C पे अगेंस्ट है, समझ गए? D पे क्या है भाई? D पे F equals to 0. E पे g sin 40. समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर ना? अब नेक्स्ट फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस. हो गया हमारा लास्ट. सुनो फाइंड द बोलो अम्मा जल्दी बोलो. ए पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जल्दी बोलो. देखो भाई एक चीज गौर करो, ये सर्कल पे मूव कर रहा दिख रहा? ये सर्कल पे मूव कर रहा ना? तो सर्कल पे मूव कर रहा तो सर्कल पे अगर मूव कर रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r रिक्वायर्ड है. mv²/r रिक्वायर्ड है. तो ये r है, ये r है, ये r है और ये r है. तो mv²/r रिक्वायर्ड है. तो mv²/r कौन दे रहा? देखो ये mg है, ये mg cos 45 है. दिख रहा? mg cos 45 है. और नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ आता ना, तो नेट अंदर की तरफ फोर्स कितना आ रहा? mg cos 45 माइनस n. इट शुड बी इक्वल टू mv²/r. समझ में आई बात? mg cos 45 माइनस n मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो बोलो, एट पॉइंट है, जल्दी बोलो. वाह. mg cos 45 degrees minus n must be equal to mv²/r. तो n क्या होता? mv²/r प्लस mg cos 45 डिग्री. समझ में आया? अच्छा b पे बोलो क्या है? b पे देखो, b पे mg नीचे है, n ऊपर है. mg नीचे है, n ऊपर है. तो mg माइनस n must be equal to mv²/r. mg minus n is equal to mv²/r. तो n equals to minus mg. mg minus mv²/r. n equals to mg minus mv²/r. n उधर चले गया, mv²/r इधर आ गया. समझ गए? समझ में आई बात? किसको नहीं आई? कहीं को नहीं आई अम्मा? ये भी सर्कल है ना? वाह, ये भी सर्कल है ना? तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv²/r है. पर लग रहा कितना फोर्स? mg ऊपर n लग रहा. तो n इक्वल टू क्या आता? mg माइनस mv²/r. n इधर चले गया. सी पे बोलो अम्मा जल्दी. सेम है, एक जैसा सिचुएशन है. सी का भी वैसी है. देखो mg इधर लग रहा, इधर mg cos 45 लग रहा. समझ गया ना? तो सी का क्या है? mg माइनस और mg cos so n equals to ठीक है. क्लियर? डी पे क्या रहता? जल्दी बोलो.
डी पे देखो, मैं इधर डी पे, mg इधर है, नॉर्मल रिएक्शन उधर है, तो बोलो mv स्क्वायर बाय आर क्या होता? mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्या होता? डायग्राम में देख के बोलो अम्मा, उधर सेंटर की तरफ क्या है फोर्स? mg मैं बोलूं, सेंटर की तरफ क्या है? n माइनस mg, बोलो ना अम्मा, n माइनस mg, mg माइनस n मत बोलो, यहाँ पे था mg माइनस n, सेंटर की तरफ mg था, n था, ये mg माइनस n है, यहाँ पे क्या है? n ऊपर है, mg नीचे है, n माइनस mg, जल्दी बोलो क्या है? n minus mg is equal to mv square by r. तो क्या था? n इक्वल्स टू mg प्लस समझ में आई बात? ओके नेक्स्ट, ई पे क्या रहता बोलो? सेम एज ए, तो देखो n सेम एज ए नहीं रहता, सेम एज ए नहीं रहता, हाँ तो यहाँ पे देखो क्या रहता? n mg cos 45, एक मिनट बोलो भाई, n एक मिनट सबर, तो n क्या था? एक चीज भूल गए हम लोग, एक मिनट, एक चीज भूल गए, ये जो पॉइंट बी था ना, कहाँ है? पॉइंट सी था ना, पॉइंट सी में यहाँ पे सर्किल ऐसा है, यहाँ पे सर्किल ऐसा है, दिख रहा? तो पॉइंट सी पे दो रहते एक्चुअली, जस्ट इससे पहले सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर था, ये सी पॉइंट क्रॉस करते ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर हो गया, समझ गए? तो सी के दो केसेस आते हैं, सी कहाँ है? सी कहाँ है? सुनो, हाँ एक मिनट, सी के दो हिस्से है अम्मा, ये सी के दो हिस्से है, जो पहले आ रहा वो ए के जैसा है, जो सी पार करते ही आ रहा वो ई के जैसा है, समझ गए? तो सी का, हाँ सी का जस्ट बिफोर सी, और एक क्या था? जस्ट आफ्टर, क्या था? जस्ट आफ्टर क्या था? जस्ट आफ्टर सी क्या हो गया? ऊपर आ गया ना सेंटर, तो क्या लेना? n माइनस तो n इक्वल टू क्या था? mg cos 45 प्लस ठीक है। जब रोड ऐसी रहती, कॉन्वेक्स रहती, वजन कम हो जाता, नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस। जब रोड ऐसी हो जाती तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाता, mg प्लस, समझ गए? इसीलिए जब ऐसा जाते हल्के हो जाते हम लोग, ऐसा जाते वजन बढ़ जाता, समझ गए? राइट्स में महसूस होता है, ठीक है? झूला ऊपर जा रहा तो हल्के हो जाते, झूला नीचे जा रहा तो वजन हो जाते, ठीक है? क्लियर? ओके, कल कंटिन्यू करें।
surface.